Good morning, students. In today's session, we are going to create one more project. Okay. As we have already prepared one project yesterday, that is butterfly swirl, right? How we can create a butterfly swirl. But in today's session, we are going to create one another project that is fish aquarium. That is what? Fish aquarium. So as we all know, if we are going to prepare any project in scratch, so we have a three steps. First one is designing, second one is coding, and the third one is checking the result. Whatever we have made, we need to check. We need to run our project. Okay, so that is all about the strategy to prepare any project. So we are going to start with the designing first, then we need to jump onto the coding, and then we need to check the result. Okay. So let's start with the designing part. So first we need to create a background for fish aquarium. So before that, I need to just clean up my stage area. So this is the stage area. I need to clean this cat, or I need to delete this cat sprite from the stage area. So here's the option to delete any sprite. So stage areas clean so that we can easily design accordingly. So first step is what? I need to add any background which is related to my theme. Theme is what? Project is what? Fish aquarium. So I need to choose a backdrop of underwater. Okay. So here is the background option where we can choose. Just go on the choose a backdrop, and now you can see a lots of background are here, but from where I need to go? I need to go underwater. And now you can see we have two options for the underwater. So I can take the first one. Okay. So this is the background option for फिश aquarium. आपने देखा है जो aquarium होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, राइट? तो यहाँ पर नेक्स्ट हम मूव करेंगे चूज डिफरेंट स्प्राइट्स. अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्प्राइट्स भी ऐड करने होंगे. तो अब कैसे स्प्राइट्स हम ऐड कर सकते हैं? कौन से वो स्प्राइट्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं? सो वी हैव अ फिश, स्टार फिश, ऑक्टोपस एंड क्रैब. और आई कैन टेक शार्क. कोई भी ले सकते हैं जो हम इसमें पुट करेंगे, जस्ट लाइक फिशेस, राइट? सो वी हैव अ ऑप्शन फॉर स्प्राइट इज हियर. Okay. And now this is the option choose a sprite. Now I need to find out the shark. सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कोई ऐसी स्प्राइट जो शार्क जैसे दिखती है या फिश जैसा दिखती है, राइट? Here it is, right? You can see. I think this one is helpful for us. So we can take this one. Now next हमें कौन सा लेना है? Starfish. So again we need to go in the Scratch library once again and find out the starfish.
Where is the starfish? Yes, this is the starfish. Just click on that. Now you can see this is available on the stage area now. Now, next sprite is octopus. Where's the octopus here? Yes, here it is. ओके, तो अभी हमारे पास 3 स्प्राइट्स आ चुके हैं, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क. नाउ वन मोर वी कैन टेक, दैट इज क्रैब. अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे क्रैब कहाँ पर है. वेयर इज द क्रैब? यस, हियर इट इज, राइट. So we can take this one also and put anywhere where you want to put it. Okay. But अगर आपने एक्वेरियम देखा है तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे से फिशेस होते हैं उसके अंदर, बहुत छोटे छोटे से. सो फॉर दैट वी नीड टू रीसेट द साइज ऑफ स्प्राइट्स अकॉर्डिंग टू आर नीड, राइट. जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको रीसेट कर देंगे, इनके साइजेस को क्या करेंगे, रीसेट. बिकॉज अभी ये बहुत लार्ज साइज में है. और अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो बहुत माइनर छोटे छोटे से साइज में वो अवेलेबल होती हैं उसके अंदर फिशेस. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है साइज का. फर्स्टली आई नीड टू सेलेक्ट शार्क, देन रीसाइज इट. In place of 100, I am typing here 50. And then I will check, is it working or not for me? Yes, it's fine. It's perfectly fine for me. Right? So I can take the size 50 for all the sprites. मैं अब क्या कर सकती हूँ, सारे sprites के लिए size को same कर सकती हूँ. So here I can type here 50 once again. Then for octopus, और साइज को रीसेट करने के लिए हमें पहले उसको सेलेक्ट करना होगा. Then type here 50. Okay. Now next one is crab. Just type here 50. नाउ अभी आप देख रहे हैं सबकी पोजीशन क्या हो गई है, बहुत स्मॉल हो गई है. दैट इज परफेक्ट फॉर अस, हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो कि परफेक्ट है. सो दैट इज ऑल अबाउट द फिश एक्वेरियम डिजाइनिंग जो हमें करनी थी, राइट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये क्या है, पहला स्टेप है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. नाउ द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? सेकेंड स्टेप इज कोडिंग. And for that we need to prepare code blocks for each and every sprite which is available on the screen. जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक्वेरियम के अंदर देख रहे हैं, 4 स्प्राइट्स हैं. 4 स्प्राइट्स के लिए हमें सेपरेटली कोड प्रिपेयर करना होगा. सो दैट क्या होगा कि जितने भी स्प्राइट्स हैं वो फंक्शन में आ जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट. तो क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं कोई भी दो के लिए एक सेपरेट कोड रेडी करते हैं और उसको कॉपी करेंगे. सिमिलरली दूसरी कैटेगरी के लिए एक सेपरेट कोड प्रिपेयर करते हैं और दोनों को वही कोड प्रोवाइड करेंगे. तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि शार्क और स्टारफिश को हम सेम कोड दें और ऑक्टोपस और क्रैब को हम सेम कोड दे दें, तो वो एक एक टाइप का फंक्शन करें और वो एक टाइप का. सॉरी. ओके. सो स्टार्ट विद द ऑक्टोपस फर्स्ट, या क्रैब से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऑक्टोपस को कॉपी कर देंगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट एन इवेंट. हमें सबसे पहले एक इवेंट क्रिएट करना है. एंड देन गो टू द पोजिशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ से अगर मैं क्रैब की बात करूँ तो क्रैब की पोजिशन को मुझे चेंज करना है. ओके. So we need to go where? In the motion block, and here we have a go to x axis and y axis.
put it here, and now we need to set the x axis and y axis जहां भी हम इसको मूव कराना चाहते हैं. Like I want to put here -27 और y axis 59. Okay, and then click on the flag. Now you can see अभी क्रैब कहाँ पर था और कहाँ चला गया, राइट? तो ये हमें मूवमेंट इसमें शो करनी है. अब वापस से क्रैब को क्रैब की पोजीशन पर सेट करते हैं. ओके. इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही क्रैब यहाँ से यहाँ ग्लाइड होगा, ग्लाइड का फंक्शन हमने कल भी सीखा था. सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है क्रैब. तो जैसे ही ग्लाइड होकर यहाँ जाएगा, उसको क्या करना है, टर्न करना है 15 डिग्री. ओके. नाउ चेक द रिजल्ट. देखो टर्न हुआ है हल्का सा, करेक्ट? तो सेम आपको के इसी तरीके से हमें किसके साथ करना है, ऑक्टोपस के साथ. इसको यहाँ सेट करें, इसकी डायरेक्शन को वापस से सेट कर दें. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब हमें कोई भी टास्क अगर इन स्प्राइट से कराना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? एक बार तो कराएंगे नहीं. अगर आपने एक्वेरियम को देखा है तो उसमें मूवमेंट होता रहता है उनका कॉन्टिन्यूअसली. फिश कभी इधर कभी उधर, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, राइट? तो ये टास्क क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली रिपीटेडली होता रहता है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर एवर ब्लॉक. क्योंकि फॉर एवर ब्लॉक उस पर्टिकुलर टास्क को हमने कल भी डिस्कस किया था क्लास में, रिपीटेडली करता रहता है. वी नीड टू गो इन द कंट्रोल, टेक द फॉर एवर ब्लॉक and put it here. And then what should I do? Go in the motion block. अब हमें क्या करना है, जो कंटिन्यूअसली काम हमें कराना है क्रैब से, वो क्या है कि वो एक तो 10 स्टेप मूव करे और अपना नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज करती रहे. जो यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉस्ट्यूम क्रैब का ये है, सेकंड कॉस्ट्यूम में ये इस तरीके से दिखती है. फर्स्ट में कुछ ऐसी है, सेकंड में कुछ ऐसी है, राइट? तो ये क्या करे, इसको चेंज करती रहे. ऐसे ही किसको करना है, ऑक्टोपस को करना है. तो यहाँ पर हम जा सकते हैं लुक्स में, और लुक्स में हमें मिलेगा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ऑब्वियसली. ठीक है. और आफ्टर वेट 2 सेकेंड, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के चेंज के बाद 2 सेकेंड के बाद उसको क्या करना है, क्योंकि देखो अगर वो मूव करते हुए जाएगी, 10 स्टेप मूव करते हुए जाएगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, शो करती हूँ. मैं फ्लैग पे क्लिक करके आपको शो. तो देखो आउट हो गई है ना. ये देखो टर्न हुई, टर्न हुई, ऐसे ऐसे चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी. बट जब चलते जाएगी, आप देख रहे हो क्रैब को, वो चल रहा है, हल्का सा टर्न होके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. इट इज इन मूविंग कंडीशन. 10 स्टेप्स मूव करता है, कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है हर 2 सेकंड के बाद, और टर्न के साथ पहले ही वो टर्न कर चुका है एक तरफ, उसी टर्न में हम वो मूव करता जा रहा है. लेकिन जैसे ही बाउंड्री को टच करेगा, आप देखना ये आउट हो जाएगा बाउंड्री से, बाउंड्री से बाहर चला जाएगा स्टूडेंट्स. और जब बाउंड्री से बाहर चला जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा, और दिखना बंद हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट जीरो हो जाएगा, राइट? हमें वो नहीं करना है. तो उसके लिए हम एक कोड अप्लाई करेंगे, वो मैं बताती हूँ. पहले आप देखिए कि आउट हो जाएगा. हो गया हाइड, एज पर जाकर, बाउंड्री पर जाकर हाइड हो गया, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसका टास्क को कर रहा है, बैकएंड पे करता जा रहा है, करता जा रहा है. तो हमें क्या करना है, जैसे ही वो इस बाउंड्री को टच करे, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है मोशन ब्लॉक में. ये देखिए, इफ ऑन एज बाउंस, जैसे ही एज पर बाउंस हो, तो वहां से वो टर्न ले ले.
जैसे ही एज को बाउंस करे, सेट द रोटेशन स्टाइल। हमें क्या कर देना है, रोटेशन स्टाइल को सेट करना है लेफ्ट टू राइट। आ गया ना वापस से? एज से टच होते ही लेफ्ट टू राइट चलना शुरू कर दे, क्योंकि अगर राइट डायरेक्शन में जाता रहेगा तो विजिबल ही नहीं होगा। करेक्ट? यस। सो ये फंक्शनैलिटी हमने किसकी दिखाई है, क्रैब की। सिमिलरली हम किसको देते हैं, सेम कोड दे देते हैं ऑक्टोपस को। ओ, डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, जस्ट डिलीट इट। सो ड्रैग इट एंड पुट ऑन द ऑक्टोपस। जैसे ही आपने ऑक्टोपस पे क्लिक किया, देखो सेम कोड आ गया कॉपी करते ही। अब मैं आपको फंक्शनिंग दिखाती हूँ, फ्लैग पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखो, दो ही चीज रनिंग में है। ऑक्टोपस के कुछ अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, तो वो अलग अलग दिखा रहा है, कहीं ड्रम बीट हो रहा है, कहीं कैप लगाया हुआ है। राइट? तो अभी फंक्शनिंग सिर्फ किसको मिली है, क्रैब को और ऑक्टोपस को। राइट? अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन देना किसको है, शार्क को, स्टारफिश को। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट मैम। ओके, परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद दी शार्क। अब हम शार्क से स्टार्ट करते हैं। अगेन हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे। राइट? और अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम कुछ हल्का सा चेंज कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको टर्न देते हैं, बट 35 डिग्री का टर्न दे देते हैं। अब पुट इट हियर इन प्लेस ऑफ 1535। नाउ यू कैन सी, अगर आप शार्क को देख रहे हो, ज्यादा मूवमेंट है, ज्यादा टर्न है एज कंपैरिजन टू क्रैब और ऑक्टोपस। राइट? 15 पे थोड़ा माइनर टर्न था, और 35 पे उसका जो टर्न है वो ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, आफ्टर टर्न सेम काम इसके साथ करना है। फॉरएवर ब्लॉक में डालते हैं इसको, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली हमें टास्क कराना है। ओके, और मूव कराते हैं 10 स्टेप्स। अगेन अगर मैंने इसको रन किया ना, तो शार्क आउट हो जाएगी बाउंड्री से, देखे, बाउंड्री पे वो आउट हो जाएगी। अब अगेन इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एज बाउंस लगाना होगा। सो एज बाउंस हमें कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। राइट? वी नीड टू फाइंड आउट। यस, हियर इट इज। जस्ट क्लिक ऑन दैट, पुट इट हियर। और जैसे ही एज बाउंस होगा, शार्क वापस आ जाएगी। बट क्या हो रहा है अभी, उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ बाउंस कर रही है, तो उसको एक डायरेक्शन होना चाहिए। बाउंस करते ही वो मूव करना शुरू कर देती है, बट उसको एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हम रोटेशन स्टाइल को सेट कर सकते हैं। सो हियर इज द रोटेशन स्टाइल एंड पुट इट हियर। नाउ यू कैन सी, लेफ्ट टू राइट ऑल अराउंड करेंगे तो देखो इस तरीके से करेगा। करेक्ट? डोंट रोटेट, सॉरी। ऑल अराउंड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करे, फिश का कोई डायरेक्शन ना रहे। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फिश की डायरेक्शन सही रहेगी। ये देखिए, लेफ्ट टू जैसे ही हुआ, राइट हो गया। अपने से लेफ्ट साइड वो मूव करे।
यहाँ टर्न होगा उससे अपोजिट साइड, ठीक है। इट इज लुकिंग गुड नाउ। Yes, ma'am. बट आप देख रहे हैं अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग इन द फुल फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोग्राम एंड initially initiate this program by the help of this flag. Now you can see आपकी थ्री चीजें जो है वर्किंग में, फंक्शनैलिटी में है। ऑक्टोपस, क्रैब और शार्क। कुछ स्क्रॉलिंग टाइप कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट टाइप है, बट शार्क अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, स्टारफिश को, ये अपनी पोजीशन पर होल्ड है। इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है बिकॉज हमने इसको कोई भी किसी भी टाइप का कोड प्रोवाइड नहीं किया है। करेक्ट, राइट। अभी अगर हम शो करें, वापस से एग्जिट करते हैं फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड एंड नाउ यू कैन सी स्टॉप दिस प्रोग्राम। ये देखिए, अगर शार्क पे जाते हैं तो कोड अवेलेबल है, ऑक्टोपस पे जाते हैं तो कोड अवेलेबल है, क्रैब पर जाते हैं तो कोड अवेलेबल है, बट अगर मैं स्टारफिश पे जाऊं तो इट इज इन ब्लैंक कंडीशन। इसके पास कोई कोड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी और वर्क। इसी वजह से ये किसी भी तरीके की कोई फंक्शन और कोई काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, वी नीड टू डू वन थिंग। हमें क्या करना है, जो भी कोड हमने शार्क को प्रोवाइड किया है, करेक्ट, वो सेम कोड हम किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टारफिश को। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेम कोड दें, आपका अगर कुछ और थॉट है आप उसको भी कर सकते हैं, आप फिर से फ्रेश कोड भी स्टारफिश के लिए बना सकते हैं। हम ऐसा कोड भी बना सकते हैं, पहले बाद में उसको कॉपी करेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू वन वन थिंग। हम इस तरीके का कोड भी बना सकते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ, sorry, we need to create an event, and under this event what should I do? Okay, so I want कि ये hello बोले for a 2 second, and then it will change effects, और ये continuously होता रहे। अगर continuously करना है, so I need to put all the code in forever. Okay, कलर चेंज करता रहे और इसका इफेक्ट रहे एटलीस्ट 60। नाउ यू कैन सी स्टारफिश क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है। इवन इसके साथ साथ हम एक टास्क और कर सकते हैं कि हम इसको मूव कराएं 10 स्टेप, ठीक है। एज बाउंस लगाएं, बिकॉज अगर मूव करेगा तो आउट हो जाएगा, आफ्टर 10 सेकेंड मूव करते 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 ही आउट हो जाएगा। सो उसके लिए एज बाउंस लगाएंगे, और एज बाउंस लगाने के बाद यहाँ सेट करेंगे रोटेशन स्टाइल। ओके, तो इट इज लुकिंग नाइस नाउ। Yes, ma'am. तो इस तरीके से हम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, बट अभी क्या करते हैं, इसको कंप्लीट रन करते हैं। सो हियर्स द फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड, स्टॉप दिस प्रोग्राम एंड अगेन रन दिस प्रोग्राम। राइट। सो इस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर ओन रिक्वायरमेंट। अगर हमारे माइंड में कोई भी थॉट क्रिएट होता है, इधर इट इज रिलेटेड टू द गेम, इधर इट इज रिलेटेड टू द एनिमेशन स्टोरीज और एनिमेटेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, whatever, जो भी आपके माइंड में आता है, यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ दीज कोड्स। ओके,
Are you getting this thing? Yes, ma'am. Okay, that's perfect. मैम एक बार और स्प्राइट के कोड मिल जाएंगे? सॉरी, एक बार और रिपीट करो. मैम ऑल स्प्राइट्स के मैम शो हो जाएंगे? ऑल स्प्राइट्स क्या? मैम कोड शो? कोड. ओके ओके फाइन. ओके, स्टार्ट विद दिस शार्प. यस मैम. नेक्स्ट शो करूं अभी? मैम देन स्टार फिश शो? स्टारफिश शो करूं बेटा? यस मैम. ओके, सो दिस इज फॉर स्टारफिश. मैम हो गया. मैम देन ऑक्टोपस शो? ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस. यस मैम. मैम देन क्रैब? ओके ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज क्रैब. ओके, मैम डन. ये कोड है आपका सारे स्प्राइट्स का. इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है. सो दैट इज ऑल अबाउट द फिश एक्वेरियम. And we have already covered one more project, that is Butterfly's World. So it is for all student. Each and every student do practice. Okay, सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी है. और अभी दिस इज द बिगनिंग. अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, फिर हम गेम्स क्रिएट करेंगे, एनिमेटेड स्टोरीज क्रिएट करेंगे. देन एक स्टेज ऐसा आएगा, आपको रेंडमली दिया जाएगा कोई भी थीम, और आपको वो विद कोडिंग प्रिपेयर करके देना है. ओके, अभी आपको कोडिंग सिखाई जा रही है और फिर आप सेल्फ क्रिएट करेंगे कोडिंग. ओके, सो यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस नाउ. मैम नो डाउट. ओके, मैम परफेक्ट. मैम होमवर्क? यस, अभी मैं शेयर डिस्कस करती हूँ. जीएस मॉडर्न, यू हैव एनी क्वेरी? Yes, Modern, you have any doubt? Okay, perfect. Thank you. So, what is the homework for today? So, homework is you need to do the same project. Okay, आज आपको same project ready करना है and you need to share the video for video with me. Okay, perfect. यस मैम. Okay.